Hello and welcome to Legacy IAS Academy. So in today's video, we are going to discuss about bulldozer justice. ठीक है? So first of all, let us understand कि why are we studying this topic? Why is this topic running introduced? हमें क्यों पढ़ने की जरूरत है bulldozer justice के बारे में? So अभी recently Supreme Court ने एक set of guidelines दिया है कि आप under ये condition ही किसी भी property को demolish कर सकते हो. So why is it running in news is because Supreme Court की कुछ guidelines आई हैं for bulldozer based demolition. ठीक है. अब ये क्यों सुप्रीम कोर्ट को इसमें इंटरवीन करना पड़ा? क्योंकि ये केस सुप्रीम कोर्ट तक कैसे पहुंचा कि रतलाम में एक केस रजिस्टर हुआ. रतलाम इन द सिटी ऑफ रतलाम द केस वाज रजिस्टर्ड अगेंस्ट अ पर्सन फॉर काउ स्लॉटर. ठीक है. बट एज अ कंसीक्वेंस ऑफ दिस द हाउस ऑफ दैट पर्सन वाज डेमोलिश्ड. Something similar took place in Jahangirpuri. There is certain community against whom communal riots were registered. Communal riots, their involvement in communal riots were registered. The entire community's houses were demolished. Jahangirpuri में entire community's houses were demolished. ठीक है? Using bulldozer in Delhi. ठीक है? So the problem is कि what we are observing या सुप्रीम कोर्ट का क्या ऑब्जर्वेशन है that over a period of time a person who is involved in certain something or the other criminal activity or some offense I would say, तो instead of judiciary taking decision कि इस इंसान के खिलाफ ये जुडिशियल पेनाल्टीज लगने चाहिए, the executive takes over the law and starts executing the judicial tasks. ठीक है. जैसे जुडिशियल टास्क हो गया कि एग्जीक्यूटिव डिसाइड करने लगे कि लेट मी डेमोलिश दिस पर्सन्स हाउस बिकॉज दिस पर्सन वाज इन्वॉल्व्ड इन सम ऑफ द अदर क्रिमिनल एक्टिविटी. ठीक है. So what is exactly bulldozer justice? Bulldozer justice now over a period of time, it has been existing in India for a very long period of time. In the history of state government of MP, in state government of Rajasthan, in the state government of UP, and so MP में for example Shivraj Singh Chauhan was known as the bulldozer Baba. ठीक है. Yogi Adityanath in UP is known as the bulldozer Baba. If you see his election campaign also, people will come and gift him a bulldozer, or there will be hundreds of bulldozer, multiple bulldozer who will be welcoming Yogi Adityanath during his election campaign. So this is a denotion कि we denote this leader by the name of bulldozer. कि अगर कहीं भी लॉलेसनेस रहेगा, कोई अगर लॉ है जिसे वायलेट करती है पब्लिक, तो द हाउसेस विल बी डेमोलिश्ड. ठीक है. सो यूपी में, एमपी में, राजस्थान में अशोक गहलोत इज नोन एज द बुलडोजर बाबा. सो over a period of time, because the state government and the state CM started making use of bulldozer based justice, तो over a period of time there started taking place social acceptance. Social acceptance कहने का मतलब कि the society has started to accept कि नहीं और this person has done a criminal act and demolishing his house or her house can be a justified manner. उसे पेनाल्टी देने के बजाय पेनाल्टी ही दे रहे हैं, उसका घर ही गिरा दे रहे हैं. So तो ये क्या हो रहा है कि सोशल एक्सेप्टेंस दिखाई देने लग रहा है फॉर फोर्सफुल गवर्नेंस दैट यू हैव टू अबाइड बाय द लॉ. इफ यू आर नॉट अबाइडिंग बाय द लॉ तो आपके घर को गिरा दिया जाएगा. इसके खिलाफ ही सुप्रीम कोर्ट ने ये सेट ऑफ गाइडलाइंस दिए हैं कि नहीं आप इस तरीके से रैंडमली किसी भी पब्लिक के खिलाफ एग्जीक्यूटिव नहीं डिसाइड कर सकती है दैट व्हाट शुड बी द पेनल्टी. ठीक है. फॉर अ पर्टिकुलर एक्ट. ये तो अभी का केस है 2024 में, बट इससे पहले हमारे जो सीजेआई थे, फॉर्मर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, उनका कहना था कि उनका बुलडोजर जस्टिस के प्रति ये जजमेंट था कि दैट द चिलिंग साइट ऑफ बुलडोजर डेमोलिशिंग अ बिल्डिंग व्हेन अथॉरिटीज हैव फेल्ड टू द बेसिक प्रिंसिपल टू फॉलो द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस. कौन सी अथॉरिटीज? जो एग्जीक्यूटिव है. एग्जीक्यूटिव का क्या काम था कि आपको इंश्योर करना था लॉ एंड ऑर्डर. ठीक है. तो आपने नेचुरल जस्टिस को नहीं इंश्योर कर पाया, आप लॉ एंड ऑर्डर को नहीं इंश्योर कर पाए, तो उसके एवज में एंड हैव एक्टेड विदाउट अडहियरिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ ड्यू प्रोसेस. द प्रिंसिपल ऑफ ड्यू प्रोसेस क्या कहता है कि दिस इज द लॉ, इफ यू आर नॉट एक्सेप्टिंग दिस लॉ, इफ यू आर नॉट फॉलोइंग दिस लॉ, देन दिस इज द पेनल्टी.
अब व्हाट इज द पेनल्टी ये डिसाइड करना हमारे यहाँ कोर्ट्स का काम है, और रादर आई शुड से जुडिशियरी का काम है। ऑन द अदर हैंड एग्जीक्यूटिव सच एज हमारे सीएम या पीएम या गवर्नर, ये सारे कोई आते हैं एग्जीक्यूटिव में। इनका काम क्या है? इनका काम है टू एग्जीक्यूट द लॉज क्रिएटेड बाय द लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर मतलब पार्लियामेंट। पार्लियामेंट जो भी लॉ बनाएगी उसे इंप्लीमेंट करना एग्जीक्यूटिव का काम है, ठीक है। और ये चेक करना कि आप इस लॉज को करेक्टली इंप्लीमेंट कर रहे हो या नहीं, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट एंड पब्लिक, ये काम करना जुडिशियरी का काम है, ठीक है। So you have failed, the authorities have failed to adhere to the principle of due process. Principle of due process कहती है कि आपके पास ये लॉ फॉलो करना है, आप नहीं करोगे तो ये पनिशमेंट है, पनिशमेंट के लिए आप कोर्ट जाओ। तो आपने ड्यू प्रोसेस फेल, आप ड्यू प्रोसेस फेल किए क्योंकि you did not send the person to court, you yourself took the decision, ठीक है। Reminds of the lawless state of affairs. This is a lawless state of affairs. अगर कानून नहीं भी होगा तो भी यहाँ पब्लिक रह लेगी, तो भी पब्लिक को यहाँ रहने के लिए मजबूर किया जाएगा, क्योंकि you do not require law for implementation of this. आप कोई भी एक्ट करो, आपका घर को गिरा दिया जाएगा, घर वालों को मार दिया जाएगा। So this denotes कि this is a lawless state of affair where might was right. Might was right मतलब जिसकी लाठी उसकी भैंस, ठीक है। तो you are correct if you are powerful, ठीक है। तो ये सिचुएशन डिनोट करता है if we are making use of a bulldozer justice. इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये सेट ऑफ गाइडलाइंस दिए हैं। अपने गाइडलाइंस को देने से पहले सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लैरिफाई किया है कि दिस इज नॉट एप्लीकेबल टू एनी स्ट्रक्चर व्हिच इज बिल्ट इन अ पब्लिक प्लेस, ठीक है, या रिलीजियस प्लेस, रेलवे लाइंस, ठीक है, इस तरीके की पब्लिक एक्सेस फैसिलिटीज, या फिर दिस इज ऑल्सो नॉट एप्लीकेबल टू एन एरिया जहां पे कि कोर्ट हैज ऑलरेडी गिवन demolition orders। तो उन सभी एरियाज में ये एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। ये जो गाइडलाइंस हम लोग नीचे देने जा रहे हैं ये तब एप्लीकेबल नहीं है अगर कोर्ट ने ऑलरेडी आपको डेमोलिशन ऑर्डर दे दिया है, या फिर आपने अपना जो स्ट्रक्चर है, घर है, उसे किसी भी रिलीजियस एरिया या पब्लिक प्लेस का बनाया है, ठीक है। बट अगर ऐसा नहीं है तो वी हैव थ्री सेट ऑफ गाइडलाइंस दिए गए हैं। बट इसमें सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि वी आर ट्राइंग टू एम्फसाइज ऑन ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी मतलब पब्लिक नोस कि दिस इज द एक्ट, दिस इज द क्रिमिनल एक्ट, तो इसकी पेनल्टी ये होगी, ये एक्ट है तो पेनल्टी ये होगी। पता चला कि somebody who is very powerful, economically, socially, politically very powerful and has a greater influence on executive, so executive will not be taking decisions against this community or against this individual. But somebody who is very weak, he or she is not having, or them, they are not having a great influence over executive. So in that case, executive can take strict action against this kind of public. Understood? So इसलिए सुप्रीम कोर्ट की 3 सेट ऑफ गाइडलाइंस आई थी। पहली फर्स्ट थी कि 15 डेज का प्रायर नोटिस देना पड़ेगा। आपको डेमोलिशन करने से पहले एक नोटिस भेजना पड़ेगा उस पब्लिक को, उस घर को, उस घर वालों को कि आपके घर का डेमोलिशन होने वाला है। In this, you must mention details of the structure. ठीक है, कि आपको उस घर का डिटेल की, आपको प्लान ये दिया गया था बट आपने ये बना लिया, इसका डिटेल्ड प्लान आपको कोर्ट से मिलेगा। रादर कि आप द नोटिस दैट विल बी सेंट टू यू, उस नोटिस में ये मेंशन रहेगा कि देखिए इस एरिया, इतना दूर तक आपने ये एरिया को वॉयलेट किया है, ठीक है। सो डिटेल्स ऑफ द स्ट्रक्चर प्लस अ कॉपी विल बी सेंट टू डीएम, ठीक है। इसी डिटेल स्ट्रक्चर की एक कॉपी डीएम को भेजी जाएगी, उस एरिया के जो भी डीएम होंगे, कि आपके एरिया में ये घर को गिराया जाने वाला है, ठीक है। एंड इसके लिए एक ऑटो जनरेटेड ठीक है एक्नॉलेजमेंट, ऑटो जनरेटेड एक्नॉलेजमेंट क्यों भेजा जा रहा है? क्योंकि ऐसा पहले एक्सपीरियंस किया गया है, कोर्ट ने पहले ऐसा एक्सपीरियंस किया है कि जब आपको डेमोलिशन करना था तो आपको डीएम को ऑर्डर भेजना था, डीएम को ये बताना था, सूचित करना था, इन्फॉर्म करना था कि आपके एरिया में सच एंड सच घर को गिराया जा रहा है, ठीक है। बट व्हाट यू डिड, यू डेमोलिश द हाउस एंड यू सेंड द ऑर्डर टू डीएम इन अ बैक डेटेड डेट, ठीक है, बैक डेटेड डेट, और बोल दिया गया कि डीएम को तो लेटर भेज दिया गया था, उसके बाद ही डेमोलिश किया गया। सो टू अवॉइड ऑल ऑफ दिस,
डीएम को जैसे ही ये इसके मेल की कॉपी मिलेगी, उसी का एक ऑटो जनरेटेड एक्नॉलेजमेंट आएगा कि इस डेट को डीएम को ये मेल मिला था, रिसीव हुआ था, ठीक है। सो दिस हैज टू बी कैरिड आउट, ये डिटेल स्ट्रक्चर होना चाहिए, डीएम को कॉपी जानी चाहिए और एक ऑटो जनरेटेड एक्नॉलेजमेंट मेल रिसीव होना चाहिए, ठीक है। सेकेंडली, एक बार लेट्स से कि ये जो 15 डेज की पीरियड है, इसमें हम लोगों ने जो भी ऑक्यूपेंट है उस घर के, उन्हें ये भी इन्फॉर्म करेंगे कि आपके साथ एक पर्सनल हियरिंग होगी। पर्सनल हियरिंग कहने का मतलब कि इस हियरिंग में ये सब डिस्कशन होगा कि आपके घर को क्यों गिराया जा रहा है, व्हाई आर वी डेमोलिशिंग योर हाउस, व्हाई डेमोलिशन, प्लस व्हाई डेमोलिशन इज द ओनली सोल्यूशन, ओनली सोल्यूशन, क्यों आपका घर गिराना ही एक इकलौता सोल्यूशन है, ठीक है। और कैन इट बी डन पार्शियली, कैन पार्शियल डेमोलिशन बी कैरिड आउट, या फिर वेदर द ऑफेंस कैन बी कंपाउंडेबल, क्या आप पेनाल्टी पे करके, मॉनेटरी पेनाल्टी पे करके, क्या इफ यू पे द मॉनेटरी पेनाल्टी यू कैन एस्केप फ्रॉम द पेनाल्टी इटसेल्फ, आप मॉनेटरी पेनाल्टी पे कर दो और फिर जो भी हम लोग आपके घर को नहीं गिराएंगे। So can it be turned into compoundable offense, और can it be कि हम कुछ partial part of the house जो भी illegal अवैध स्ट्रक्चर है सिर्फ उतनी ही स्ट्रक्चर को गिराएं, या फिर क्यों डेमोलिशन इकलौता सोल्यूशन है, ये इसके लिए एक हियरिंग होगी, we call this as the personal hearing, ठीक है। ये पर्सनल हियरिंग भी खत्म होने के बाद another 15 days उस पब्लिक को दिया जाएगा। To that person we will be giving another 15 days time period। अब इस 15 डेज में व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन फ्रॉम दैट पब्लिक कि यू कैरी आउट सम करेक्टिव एक्शन, ठीक है। आप खुद से ही कुछ करेक्टिव एक्शन कर लो सो दैट कि दिस स्ट्रक्चर विल नॉट बी डेमोलिश्ड, ठीक है। आप खुद ही कुछ पोर्शन जो एक्स्ट्रा है उसे गिरा लो, या फिर जिसे भी आपको मॉनेटरी पेनल्टी पे करना है उसे पे कर दो। तो व्हाटएवर बी द पर्सन्स इन्वॉल्वमेंट, वो जो भी आपकी गलती रही है उसके हिसाब से आप एक करेक्टिव एक्शन ले लो, ठीक है। अगर ये 15 डेज में करेक्टिव एक्शन नहीं होता है तो फिर क्या ऑप्शन है, देन इन द प्रेजेंस ऑफ वीडियो रिकॉर्डिंग, ठीक है, एंड enlisting the officers who are getting involved in demolition, वो ऑफिसर्स की लिस्ट और एक वीडियो रिकॉर्डिंग प्लस एक इंस्पेक्शन रिपोर्ट भी आना चाहिए। इंस्पेक्शन रिपोर्ट कि हम लोगों ने ऐसा ऐसा एक्शन लिया था, ये चीजें पर्सनल हियरिंग में डिस्कस हुई, बट स्टिल देयर वाज नो एक्शन टेकन बाय द पब्लिक, तो इसका एक इंस्पेक्शन रिपोर्ट कोर्ट के पास आना चाहिए, प्लस एक डेमोलिशन रिपोर्ट भी जनरेट होना चाहिए। डेमोलिशन रिपोर्ट में आप मेंशन करोगे कि क्या क्या ऑफिसर्स इन्वॉल्व थे एंड यू हैव टू गिव द वीडियो रिकॉर्डिंग इन दिस डेमोलिशन रिपोर्ट, ठीक है। सो ये सेट ऑफ गाइडलाइंस आए हैं फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट कि अंडर दीज गाइडलाइंस ओनली यू कैन कैरी आउट डेमोलिशन, ठीक है। अब इस बात को डिस्कस करते हैं कि व्हाई सुप्रीम कोर्ट इंटरवेनिंग, इसमें क्या प्रॉब्लम है कि अगर मान लेते हैं कि कोई इंसान, दिस पर्सन वाज जेन्युइनली इन्वॉल्वड इन अ क्रिमिनल एक्ट and instead of deciding what will be the penalty for this person, let's demolish his house, इसमें क्या प्रॉब्लम है, why is Supreme Court setting up guidelines for this? The problem, as we discussed earlier, कि the person's position in society, politically, socially, economically, how influential you are to the executive will be ultimately deciding whether your house will be demolished or not, ठीक है। So overall Supreme Court को इस इशू में इंटरवीन इसलिए करने की जरूरत पड़ी क्योंकि this was a violation of separation of power. As we discussed, judiciary, executive and legislature का 3 अलग-अलग काम है हमारी गवर्नमेंट में। Judiciary has the task of ensuring that the laws are being correctly implemented or not by public as well as by government. एग्जीक्यूटिव का काम क्या है कि जो लॉ लेजिस्लेचर ने बनाया, पार्लियामेंट ने बनाया, उसे हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे, चाहे वो पीएम हो, सीएम हो, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो, ये सभी कोई उस लॉ को एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। तो ये अगर आप कर रहे हो कि एग्जीक्यूटिव डिसीजन लेने लगे कि आपके क्रिमिनल एक्ट की वजह से आपको ये पेनल्टी डिसाइड किया जा रहा है, तो फिर जुडिशियरी क्या करेगी, ठीक है। सो दिस इज अ क्लियर कट वायलेशन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। सेकेंडली, पब्लिक ट्रस्ट एंड ट्रांसपेरेंसी। पब्लिक ट्रस्ट एंड ट्रांसपेरेंसी में क्या एडवांटेज, क्या प्रॉब्लम हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के लिए या रादर कोर्ट के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट पब्लिक हैज ट्रस्ट ऑन द कोर्ट। पब्लिक को विश्वास होना चाहिए कि कोर्ट अगर डिसीजन ले रही है तो वो सही ही होगा।
पब्लिक ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी के लिए इट इज इंपॉर्टेंट दैट ओनली कोर्ट शुड बी टेकिंग द डिसीजन एंड नॉट द एग्जीक्यूटिव शुड बी टेकिंग द डिसीजन, क्योंकि वी नो कि कानून के आगे एवरीबडी आर इक्वल, एवरीवन इज इक्वल इन द आईज ऑफ लॉ, दैट इज व्हाट डज द रूल ऑफ लॉ स्टेट्स। तो अगर हमें इंप्लीमेंट करना है रूल ऑफ लॉ तो हमें तभी हम लोग पब्लिक ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन कर पाएंगे। और अगर रूल ऑफ लॉ इंप्लीमेंट करना है तो वो चाहे बड़ा आदमी हो चाहे छोटा आदमी हो, कोई भी क्रिमिनल एक्ट, सेम क्रिमिनल एक्ट के लिए सेम पेनल्टी मिलेगी, ठीक है। प्लस पब्लिक ऑल्सो हैज अ राइट टू शेल्टर। राइट टू शेल्टर कहने का मतलब कि कहां जाएगी पब्लिक if there is some lawlessness state of affair. So for me, for any individual for that matter, we only have the court का presence itself ensures the right to shelter, कि court will plus that is one angle, plus right to shelter is also the angle of home. किसी भी इंडिविजुअल के साथ ये फंडामेंटल राइट है कि उसके पास एक शेल्टर होना चाहिए। अगर आप इसे डेमोलिश कर दोगे तो हम लोग उसके राइट टू शेल्टर को वायलेट कर देंगे, ठीक है। Another thing is कि principle of criminal law does not work on the presumption of innocence. आप अगर एग्जीक्यूटिव अगर ये डिसीजन ले रही है कि इस इंसान के घर को गिरा दिया जाना चाहिए, तो then you are working on a presumption of innocence कि this person is innocent and this person is guilty. बट जब ये डिसीजन जुडिशियरी लेती है तो इसमें डिबेट होता है, लॉयर्स डिस्कस करते हैं, एविडेंसेस कलेक्ट होते हैं एंड देन कोर्ट कम्स टू द फाइनल डिसीजन। सो देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ प्रिजम्पशन ऑफ बीइंग इनोसेंट और बीइंग गिल्टी, ठीक है। बट इफ एग्जीक्यूटिव डज दिस देन देयर इज द प्रॉब्लम ऑफ प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, a very important reason why Supreme Court intervened here is the permissibility of collective punishment. मान लेते हैं कि वो इंसान ने गलती की, ठीक है, कोई क्रिमिनल एक्ट किया, ठीक है। अब लेट्स से कि उसे घर डिमोलिश करना चाहिए या लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिलना चाहिए। इस इंसान ने गलती की, सो ऑब्वियसली देयर शुड बी सम पनिशमेंट फॉर दैट इंडिविजुअल, बट व्हाई आर वी पनिशिंग द एंटायर फैमिली? If you are demolishing the house, then there is a collective punishment to the entire family members. They are facing the penalty because of the mistakes done by one individual. So, are we permitting collective punishment in India? If we are carrying out bulldozer justice, then we are permitting collective punishment in India, which जो कि valid नहीं है. This is not correct. ठीक है? इसलिए भी सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर में इंटरवीन किया, ठीक है। अब आते हैं कि सरकार का क्या आर्गुमेंट है, व्हाट आर द आर्गुमेंट्स फ्रॉम वेरियस स्टेट गवर्नमेंट एंड एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट। कि फॉर एग्जांपल यूपी, एज वी डिस्कस्ड, यूपी, एमपी, राजस्थान, ये सारे स्टेट गवर्नमेंट में बुलडोजर का यूजेज फॉर डेमोलिशन ऑफ हाउसेस फॉर एनी पर्टिकुलर क्रिमिनल एक्टिविटी इज वेरी कॉमन। तो स्टेट गवर्नमेंट का क्या आर्गुमेंट है कि क्यों करते हैं बुलडोजर जस्टिस, इज बिकॉज दे आर सेइंग दैट इट इज इन अकॉर्डेंस विद म्युनिसिपल लॉ। they are saying, the state government says कि हम लोग कभी भी वो घर गिराए हैं तो वो यही देख के गिराए हैं कि वो घर अवैध है, it is illegally constructed, ठीक है। But the problem is कि court has observed कि अगर वो illegally constructed है तो only till the portion it is illegally constructed you can demolish. Why are we demolishing the entire house? ठीक है। Secondly, स्टेट गवर्नमेंट का कहना है कि इट विल क्रिएट एन इफेक्टिव डेटरेंस, ये आगे भी किसी भी इंसान को इस तरीके का क्रिमिनल एक्ट नहीं करने के लिए मजबूर करेगी। फॉर एग्जांपल लेट्स से रतलाम का काउ स्लॉटर केस था, सो एज टू इंश्योर कि आगे कोई भी काउ स्लॉटर नहीं हो, उस इंसान के घर को गिरा दिया जा रहा है। दिस इज द मैनर इन विच एग्जीक्यूटिव इज थिंकिंग, ठीक है। Then they are saying that it has also helped in restoration of law and order, and this is universal and not religious bias. तो स्टेट गवर्नमेंट्स, चाहे वो यूपी हो, चाहे एमपी हो, चाहे राजस्थान हो, they are saying कि we are not religiously biased when we are demolishing the houses. This is universal. अगर कोई भी इस गलत काम करेगा तो उसे बुलडोजर जस्टिस मिलेगा. So what we are trying to say, what the state government here is trying to say, कि this is not based on religion, but on ground what we are seeing is majorly the cases are being discussed on the basis of religion only, ठीक है। So with that we come to the end of the discussion related to bulldozer justice. खैर अब स्टेट गवर्नमेंट कुछ भी बोले, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस आ गई है, so we will have the executive legislature will have to follow the guidelines by Supreme Court, ठीक है। If you have any doubt related to bulldozer justice, please do let us know in the comment section below. Thank you so much and all the very best.